आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। हार्टफेल्ट वेलकम टू ITDC इंडिया व्यूअर्स। मैं हूं आपका एक शुभ चिंतक, एक दोस्त, एक साथी SD वीरेंद्र। Today's episode is dedicated to an institution that has shaped thousands of engineers, architects and researchers. An institution known for excellence, innovations and service to the society. From national recognition in NASA, India and HUDCO competitions to launching new age programs in energy and electric vehicle engineering and energy economics, MANIT Bhopal stands as a defining moment in its journey. Welcome back to your favorite show, Words with Virendra. Today we are honored to host the leader steering MANIT Bhopal, Maulana Azad National Institute of Technology, Madhya Pradesh, an institute of national importance and one of Madhya Pradesh's most respected centrally funded technical institutions. Please welcome Professor Karunesh Kumar Shukla, Director, MANIT Bhopal. Welcome, Dr. Namaskar. Thank you. Today our interview is of 6 sections. First section is of strategic vision and institutional growth, legacy to 2030 vision. Dr. What is your vision for MANIT in 2030 academically, in research and its societal contributions? Namaskar and thank you, Virenji. Thank you. The question that what is the vision of MANIT for 2030? So I'd like to say that the vision of MANIT is in line with the vision of our Honorable Prime Minister for the country. Great. 2030, then 2047 and then finally 2070. Yeah. So the short-term vision is that MANIT has to match with the national vision in all the cutting-edge technology. If I say that our goal should be to work on the energy sector, to minimize the carbon footprint, to match with the advancement being taking place in AI-related activities, healthcare. So our vision is to produce quality engineers, technocrats in these cutting-edge technology in new areas. Thank you. When we are thinking about ranking and future roadmaps, how do you interpret the recent NIRF rankings, and what is your roadmap to strengthen MANIT's national and global standing? Because it is time 81st, you can say. Okay, yeah, our current rank is 81st, that's not good. I must admit it. It was 72 previous year, we have slightly gone down to 81. Even in earlier years, we have seen era of 57th rank also. 60, 57, so they at that time new less institutions were there. Yeah. So every year new players are coming into the ranking and they are displacing ourselves, our institution. Yes. So definitely we have to work hard. I cannot say that we are the best, we have to be the best. Yeah. Yeah. Now if you talk about the ranking, there are different parameters. For the viewers, I can say that TLR, teaching learning resources, research and professional outcomes, RPC, then graduate outcomes, outreach and inclusivity, and of course perception. Yeah. So I have analyzed with my team why we are at 81 or we are not within 50 or say under 30 whatsoever. So the two parameters, two areas where we have to work hard. One is you can say the teaching learning resources, which includes the student strength, including doctoral strength, faculty student research ratio, and the financial resources. So
one area where we are not doing good is the admission at PG level and PhD level. For that, we have introduced new programs also at PG level, which can admit students from different domains, say interdisciplinary. Then PhD students also we have opened it for the practicing engineers, for the serving engineers in part-time mode. So this is one area we have worked, and I am glad to say that 2 years back around 50 students were taking admission in an academic year. Now we have gone the PG we have PhD programs, and we have plus now 300. Oh, doctoral researchers. Yeah, every year. So my dream and vision was that every year we should graduate at least 200 to 300 quality PhD students with quality publications and technology transfer. So that will increase the research output also. And faculty student ratio is not good. The reason is that our intake at UG level is maximum one of the highest in the country, whereas the faculty required is not that much. So in 2 years we have gone for the 3 recruitment cycles. 50 odd AM faculty have joined. So my aim is to fill all the vacant seats first, and then we can go to the ministry and ask for the additional seats as that matches with the faculty student ratio of 1:15. Are they all regular faculty? All are regular faculty. Right now we are having 294 regular faculty, all with PhD. Means around 50 recently they joined. Yes, when I joined the institute, there were 228. Now we have gone to 294, and 3-4 are likely to join. One special drive for ST and OBC and physically challenged is already on. That will be completed in next 2 months. So after completing that, we will cross 300. Yeah, sure. Nowadays, NEP, there is a burning subject for India. Many disputes, many debates, many conversations. So NEP 2020 and multidisciplinary push की बात करें, how are NEP 2020 aligned programs transforming MANIT into a flexible, multidisciplinary, research intensive ecosystem? बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन उद्देश्य जो था ये फ्लेक्सिबल एकेडमिक स्ट्रक्चर और स्टूडेंट सेंट्रिक। तो अब एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट के साथ होना चाहिए। तो इससे NEP से हम लोग को फ़ायदा क्या हुआ, मैनिट में हमने भी फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम, मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किए। जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था, हमने एनर्जी एंड EV इंजीनियरिंग शुरू किया, जिसको 2 डिपार्टमेंट मिलके कर रहे हैं। ऐसे एनर्जी एंड इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिशनल मैकेनिक्स, जिसमें सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, डेटा मैकेनिक्स, बायो मैकेनिक्स, ये सब मिला के एक प्रोग्राम शुरू किया। एनर्जी एंड इकोनॉमिक्स मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें ह्यूमैनिटीज के लोग भी हैं, मैनेजमेंट भी हैं और एनर्जी के लोग भी हैं। ऐसे ही हमने एक माइनर प्रोग्राम शुरू किया इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, जो कि स्टूडेंट ले सकता है 20 क्रेडिट का। और स्टूडेंट्स को अब 8वां सेमेस्टर पूरा उनको वो 2 प्रोग्राम ऑनलाइन मोड से ले सकते हैं। नहीं, IKS मैंडेटरी नहीं है, ये माइनर प्रोग्राम है, स्टूडेंट के बिल पे है। 20 क्रेडिट्स का उनको फिर एक डिग्री मिलेगी कि बीटेक इन देयर कोर इंजीनियरिंग विथ माइनर इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये पहले ये चल रहा था, तो NEP का ये भी था, तो हम माइनर प्रोग्राम दे ही रहे थे, ये और जोड़ दिया। दूसरा हम ये भी कर रहे हैं, स्टूडेंट को अब उनकी चॉइस के हिसाब से कोर्सेज, जैसे बास्केट दे रहे हैं कि आपका ये बास्केट कोर्सेज है, आप इसमें से क्या लेना चाहते हैं। और 8वां सेमेस्टर हमने इंटर्नशिप एम्बेडेड कर दिया है, जिससे इनको इंडस्ट्री रेडी हो, वो इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम करेंगे यहाँ के मेंटर के साथ मिलके वो प्रोजेक्ट का होगा। और 2 कोर्स वर्क जो है वो ऑनलाइन ले सकते हैं स्वयं प्लेटफॉर्म से। मल्टी डिसिप्लिनरी मींस बास्केट मींस दे हैव मल्टी चॉइसेस। हाँ, उनको चॉइसेस ज़्यादा रहेंगे, वो ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है। पहले लिमिटेशन होती थी, जैसे कोई
बच्चा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, हमारे पास फैकल्टी नहीं है। करेक्ट। अब ये है कि वो ऑनलाइन ले सकते हैं हम क्रेडिट ट्रांसफ़र, तो क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा भी हुई जो कि एनएपी की एक आत्मा है। और एनएपी में जो 7 वर्टिकल्स है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, तो फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस, तो ये सब पे हम ध्यान दे रहे हैं। जैसे एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, योगा, इसमें से बच्चे को कुछ न कुछ एक करना है और उसको क्रेडिट भी उसमें उसको मिल रही है। तो ये हम एनएपी का पूरा यूज जो है वो बच्चों के हित में कर रहे हैं। और पूरा इससे फ़ायदा क्या है, मैं कहता हूँ सबको यूज करना चाहिए। ये अब पेडागोजी जो है स्टूडेंट सेंट्रिक हो गई है कि स्टूडेंट कोर में है और बाकी हम लोग उसके आउटर ऑर्बिट में उसको स्टूडेंट के हेल्प करने के लिए हैं। तो क्या डिमांड है, जैसे सिविल का बच्चा एआई पढ़ना चाहता है तो उसको वो फ्रीडम देंगे, डेटा साइंस पढ़ना चाहता है तो उसको हम वो फ्रीडम देंगे। वंडरफुल। Now we come to campus life, innovation and student experiences. Energy, what you earlier just mentioned, energy and EV programs. What is Manik vision for contributing to India's clean energy and sustainable mobility future? बिल्कुल सही आपने कहा। और हमको जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विज़न है 2030 तक कार्बन फुटप्रिंट कम करना, उसके बाद में भी 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन की बात है, उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हमने छात्रों से लगातार डायलॉग करके उनको मोटिवेट करके कि कैंपस में लेट अस से नो टू बाइक, तो हम एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमने उनसे कहा कि आप तो पैदल चले या साइकिल चलाएं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और अगर आप रोज 3 किलोमीटर बाइक कम चलाएंगे तो उतना आप कार्बन एमिशन में भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो यू कैन बी कार्बन चैंपियन। यानी कार्बन बैंकिंग के लिए आपने नवोन्मेषता हमारे यहाँ लगाई, तो वो खुशी है ये किया। और उसके बाद से काफ़ी वृक्षारोपण भी किया है। हाँ जी। दूसरा ये है कि फैकल्टी से भी आग्रह किया था, हालांकि अभी सफल नहीं पाया, उनको मोटिवेट करेंगे कि कम से कम कैंपस में जो लोग एक दिन कहें कि हमको कोई मोटराइज्ड व्हीकल नहीं चलाना है। ओके। अब आपको ये बता दें कि हमारा ये शायद पहला कैंपस है जहाँ 4 ई बस कम्यूटिंग के लिए चल रही हैं, जो कि हमको इनसाइड कैंपस में 4 इलेक्ट्रिक बस लगातार चलती हैं बच्चों को हॉस्टल से जाने के लिए और आने जाने के लिए। तो कैंपस में वो कहीं भी जा सकते हैं। और आई एम प्राउड टू से probably this is the first campus in India where e-buses are regularly running in the campus. दूसरा हम इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। अभी आपकी मीटिंग से पहले हमारी एक मीटिंग चल रही थी जिसमें हम बैटरी टेक्नोलॉजी, ई मोबिलिटी पे एक स्टेट ऑफ आर्ट लैब कर रहे हैं और उस पर रिसर्च करके हम जो ऐड ऑन कर सकते हैं उस पर करें। अच्छा, अभी चूँकि बात कैंपस की चल रही तो मुझे एकदम से आज के अखबारों में जो खबर है उससे याद आया कि हमने दर्शकों में जस्ट बताना चाहूँगा कि ये वो कैंपस है जिसमें मैथ्स, अगर 4 मैथ्स हैं तो उसके लिए 4 टेंडर्स हैं, यानी चारों मैथ्स को चलाने वाले अलग लोग हैं। चारों जगह जो फूड बन रहा है वो हर दिन अलग बन रहा है, जो एक सरप्राइज ट्रूथ है, जनरली कैंपस में नहीं होता ऐसा। और वही आज हमने देखा हमारे जो भोपाल के पास के एक बड़े संस्थान में स्टूडेंट्स का जो एक आक्रोश था आज वो दिखलाई पड़ा। वो इसी बात के विरोध में था कि उन्हें स्वच्छ पानी और अच्छा भोजन के कारण से विरोध दर्ज करना था। ऐसी घटनाओं को मैनेट ने बहुत पहले ही समझा कि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उन्हें बेस्ट सर्विसेज दे पाएँ एटलीस्ट फूड लेवल पर, और क्लीन जो हमारा सैनिटाइजेशन है, इन सब्जेक्ट्स पर हम काम कर पाएँ। तो आप कैसे इसको देखते हैं कैंपस लाइफ को, आपने जब बात की? नहीं, ये देखिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हमको फिजिकल वेलनेस भी बच्चों का रखना है। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा पढ़ेंगे। हमारे यहाँ मैं ये बता दूं कि इसमें संस्थान की कोई दखलंदाजी नहीं है, ये छात्रों द्वारा ही चलाया जाता है। अच्छा। छात्र ही मेनू तय करते हैं, उनकी कमेटी होती है, उनकी जिम्मेदारी है कमेटी को क्वालिटी को चेक करें और वो रिकमेंड करते हैं तभी पेमेंट होता है। केवल पेमेंट चूँकि संस्थान को एक जगह पैसा जमा करके, वो तो छात्रों का पैसा है और जितना इनका खर्चा होता है जो बचता है वो छात्रों को वापस भी किया जाता है। इसमें हमारे बस हम संस्थान की तरफ से क्या देखते हैं कि अगर हमको शिकायत आती है कि एक्वागार्ड नहीं काम कर रहा है तो उसको हमको इमीडिएटली रिप्लेस करते हैं। हर संस्था, हर मेस में और विंग में भी
स्वच्छ पानी हो, हाँ। जिसमें एक्वागार्ड हो, फिल्टर हो, ये व्यवस्था है। हाँ जी। और अभी क्लीनलीनेस का हमारे वार्डन्स को इंस्ट्रक्शन है कि उनको रेगुलर सरप्राइज विजिट करना है। और ये भी है कि रैंडमली जाके मेस में से कुछ खाना लेके खा के देखें और स्टोर्स का भी चेक करें कि इसमें अगर खाना खराब है तो उनको पेनलाइज करें। और छात्र, चूँकि छात्र ही की कमेटी, जैसे अगर छात्र कहता है कि कोई समस्या, हम लोग इमीडिएटली हमारी टीम करती है। दूसरा, अभी हम प्रयोग करने जा रहे हैं कि सर्विस के लिए हमने ये देखा, मैं खुद रैंडमली मेस में जाता हूँ कि छात्रों को बार बार उठ के खाना लेने जाना पड़ता है, तो हाइजीनिक भी नहीं है। तो अभी हम ट्रॉली, जैसे आप देखेंगे बड़े मेस में होता है यहाँ पे, तो वो 2 मेस में पायलट के बेसिस पे वो ट्रॉली, फूड सर्विस ट्रॉली, वो ऑर्डर कर दिया गया है। तो इस तरह से हम इनोवेटिव चीज़ें, उनको अब हम आगे एक वो रोबोट क्लीनर की भी बात कर रहे हैं कि जिससे वो पूरा क्लीन कर दे एरिया, जहाँ पे आदमी नहीं भी करता है, तो डाइनिंग एरिया और कुकिंग एरिया पूरा रेगुलर क्लीन हो। क्योंकि हाइजीन नहीं रहेगा तो बीमारी होगी। और जो हमारा MEP भी आपने प्रश्न उठाया था, एक वर्टिकल है फिजिकल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस में फूड का, साथ ही मैं छात्रों को भी आग्रह करता हूँ कि हेल्दी फूड खाएं। अब वो उनको मोटिवेट करते हैं कि हफ्ते में 1 दिन कम से कम मिलेट्स खाएं या कुछ एक डाइट में ऐसा करें हेल्दी हो। आपको और बता दें, कैंपस में कई आउटलेट्स खुल गए हैं। जैसे हमारा एक आउटलेट वो है यहाँ पे, आपको गेट से घुसेंगे तो है एक ये बिना लहसुन प्याज का भी जो खाना खाना चाहे उसको भी एक जगह मिलता है। हर हॉस्टल में नाइट कैंटीन खुल गई है और कई फूड कैंटीन्स खुल गई हैं। उनमें अगर कहीं से भी शिकायत आती है तो हम उसको तुरंत पहले बंद कराते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन ये है, छात्रों की भी जिम्मेदारी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर उनको कहीं पे किसी भी इसमें कोई खाने की शिकायत, चूँकि उन्हीं के द्वारा की जाती है, तो वो अपने वार्डन को, चीफ वार्डन को करें, तुरंत सुनवाई होती है। अगर नहीं कोई सुनता है तो हम यहाँ बैठे। यस, थैंक यू। स्टूडेंट इनोवेशन की आपने बात की, हाउ विल यू स्केल सोशली इम्पैक्टफुल स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स सच एज नासा इंडिया एंड हैडको अवार्ड विनिंग वर्क्स? हमारे छात्र इसमें नासा और हटको में भाग भी लेते हैं, प्राइज भी जीतते हैं। और अभी हम आपको बता दें, हमारे पास मैनिट रोल्टा इंक्यूबेशन सेंटर है, जो वो सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड भी है। रोल्टा वो हर साल हम लगभग 12 छात्रों से उनकी आइडियाज़ को इनवाइट करते हैं, अपने छात्रों से इनसाइड कैंपस से, और उनकी आइडिया को इवेलुएट करते हैं, जिसमें हमारे एल्मनस जो हैं, एल्मनाई जो हैं, जो कि इंडस्ट्री में हैं, वो करते हैं और उसमें आइडिया में उनको पॉलिश करते हैं। फिर उनको हम सीड मनी के रूप पे हम 50,000 रुपये हर छात्र को दे भी रहे हैं अपने आइडियाज़ को शुरू करने के लिए। और अगर वो उसमें सक्सेसफुल होता है तो उसको हम एल्मनाई के थ्रू किसी से लिंक करके फंडिंग की बात करते हैं। हर साल हम एक ई-समिट कराते हैं, जिसमें कोशिश करते हैं अगर मिल जाए कोई उनके आइडियाज़ को पसंद है, फंडिंग हो। दूसरा, अभी हमारा हम मैनिट MSME की तरफ से होस्ट इंस्टीट्यूट आइडिया के लिए, इसमें हम पूरे मध्य प्रदेश के दूसरे लोगों से भी आइडिया इनवाइट करते हैं और वो उनको भी MSME के थ्रू फंडिंग कर रहे हैं। इन एंड एज वेल आउट कैंपस। हाँ, और एक रिसर्च पार्क की ऑलरेडी बात चल रही है। वो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन, अगर वो हो गया तो हो सकता है निकट भविष्य में एक हम बड़ा रिसर्च पार्क लेके हैं, जिसमें मैनिट के ही नहीं, आसपास के जो भी हैं। और अभी एक चीज़ और आपको बता दें, हमने स्टार्टअप, ये इंक्यूबेशन सेंटर बाहर के लोगों के लिए भी खोल दिया है, जो भी कोई चाहे इंक्यूबेट कर सकता है। अभी एक बाहर से भी एक साइंटिस्ट आके हमारे कैंपस में इंक्यूबेट किए हैं, वो चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, क्योंकि अभी तक बाहर नहीं है कि आउटसोर्स या आउट पर्सनस इस कैंपस में इंक्यूबेशन के लिए आ सकते हैं। और बड़ी अच्छी शुरुआत भी जो आपने बताया कि हम रिसर्च का पार्क बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से हमारे प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में और ख़ास करके रिसर्च के लिए। तो अभी कैंपस कल्चर और क्लब्स की बात करेंगे। व्हाट शुड बी द सिग्नेचर कैरेक्टर ऑफ मैरिट कैंपस कल्चर इन द कमिंग डिकेड? First, it should be, I hope and believe that our students should be well behaved and well disciplined. क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अनुशासनहीन व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता है, और उनको ये अनुशासन में रहते हुए नवाचार को आगे बढ़ाना है और एक दूसरे को सम्मान करते हुए आगे अगर बढ़ना है तो हमें परस्पर एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा और अनुशासन में रहते हुए नवाचार करना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने टीचर से इंटरेक्ट करें, क्लासेस रेगुलरली करें,
मेरा प्रयास ये है कि हम ओपन लैब का कॉन्सेप्ट लें, जहाँ छात्र को जो भी कुछ करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, उसको हम एक एज ए फैसिलिटेटर की भूमिका में हैं और उसको फैसिलिटेट करें वो कुछ नया करने के लिए। अच्छा, हमारा सेक्शन जो है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी एक्सेलेंस, तो डायरेक्टर रिसर्च अलायंस की बात करें हम, हाउ इज़ योर IIT दिल्ली रिसर्च बैकग्राउंड हेल्पिंग यू रीशेप एंड स्ट्रेंथन मैनेट रिसर्च कल्चर? देखिए, रिसर्च कल्चर की बात करें तो जो IIT दिल्ली में मैंने 3 साल बताया वो दैट वाज द गोल्डन पीरियड फॉर मी as far as research is concerned. हाँ जी। There I learned so many things and my gratitude to my guide who is no more, late Professor Vainath. Oh, So I must say that whatever I learned in the coursework or during the research, I pursued in my career further. And here I ask my faculty colleagues, the students, to pursue it further. For that, I would like to add 2-3 things. First, they have to identify the problems. Now, the problems should be related to the society, that should leave some impact to the society. If you call in terms of the technology readiness level, so earlier we were working up to TRL level 4 or 5 or 6. Now it has to go down beyond 8. So that so that it is linked with some industry and that is being used by someone. So I request my faculty to make it a passion. Research should be make it passion, and while teaching in the class, you have to teach beyond the textbook through your research, because our aim is to train and inculcate this habit among young students, that these are the basic things I am teaching you in the class. Beyond this, through research you can do or you can achieve. So that's what. Facilities, already we are creating, augmenting facilities every year. We have a central research facility where we are going to invest around 30 CR for the research, centralized research facilities where anyone can come. That is already there, and we have augmented it. I am happy to say that some of the equipments, they have the queue for 3 months altogether. Even outside people are also coming for testing. Great. Recently we have signed a memorandum of understanding with Bajaj Auto Skill Center. They are going to invest in smart manufacturing and e-mobility to the tune of 17 crores. Correct. So we'll have the state of art facilities. So my dream and vision is that the MANET should have all the state of art research facilities, and where the lab should open 24/7. 24/7? 24/7, yes. Great challenge you just... That's a challenge for me, and with support of all my well-wishers and my almighty, good luck. I will get it. जो आपने बात रखी है उसी को आगे बढ़ाएंगे. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, व्हाट मेजर चैलेंजेस शुड मैनेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम टू सॉल्व इन द नेक्स्ट 5 to 7 years? 2-3 चीज़ों पे जो हम लोगों ने लेके चले हैं. एक तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एनर्जी, so that where we have to support the renewable energy or saving the energy, and other is in the manufacturing. So because if we have to grow, and the India के लिए अगर हम बात करें, भारत के लिए हमको मटेरियल्स टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा कि हर छोटी चीज़ जो हम बाहर से खरीदते हैं यहाँ देश में ही बने. तो उस पर हमारा फोकस है मैन्युफैक्चरिंग. Is there any tie-up with IGTR tools also, MSME? हमारा ये है, उनसे टाई-अप है, लेकिन वो जाके अपना यूज करते हैं. अभी ऐसा कोई फॉर्मल नहीं है. तो वो ये 2 चीज़ों में, और तीसरा AI इन हेल्थ केयर. हमारा उसमें कोशिश है कि हम हेल्थ केयर में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, यूजिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कर सकते हैं. Our next segment, lab and infrastructure upgrades. What are your priority plans for modernizing laboratories and building strong externally funded research groups? एक्सटर्नल फंडेड रिसर्च के लिए हमारा फैकल्टी से रेगुलर डायलॉग है कि दे हैव टू अप्लाई फॉर द एक्सटर्नल फंडिंग रिसर्च, क्योंकि अगर रिसर्च करना है तो फंडिंग आनी पड़ेगी. लैब को ऑगमेंट करना है तो हमको पैसा चाहिए. बिल्कुल. तो अभी हमारे फैकल्टी रिसर्च प्रपोजल्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे लिख भी रहे हैं. अभी करंटली 72 रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं. और आगे भी हमारा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप हो रहा है. इसमें कि हम ये चाहते हैं कि हमारा
इन हाउस रिसर्च फैसिलिटीज मैक्सिमाइज्ड हो जाए। और जो नहीं है तो भोपाल में एम्प्री है, आइसर भोपाल है, पास में इंदौर में RR कैट है, तो जो भी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं हो उनको यूज करें। तो ये हमारे पास वो हमारे पास है, वो कोलैबोरेशन हम कर भी रहे हैं। और लेकिन कोशिश ये है कि हमारा हम मैक्सिमम रिसर्च जो है फैसिलिटीज यहाँ पे इन हाउस डेवलप कर लें फ्रॉम एक्सटर्नल फंडिंग, एलमोनाई के सपोर्ट से। एलमोनाई से भी हम रेगुलर मीट कर रहे हैं, उनके भी सपोर्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन करें, जो भी जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। करेक्ट। दूसरा एक हमारा ये प्रपोजल था जो कि अभी अंडर कंसिडरेशन है कि हम PhD स्टूडेंट्स के लिए, मैरिड रिसर्च स्कॉलर्स के लिए उनको कैंपस में आने इसके लिए मैरिड रिसर्च हॉस्टल बनाए, जिससे कि वो जब हॉस्टल कैंपस के अंदर रहेंगे तो वो 24 घंटे काम कर सकते हैं। करेक्ट। अभी चूंकि मैरिड लोगों के लिए हमारे पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, वो बाहर रहते हैं, तो एक ये बॉटलनेक है। तो जब अंदर रहेंगे तो वो अपनी फैमिली की तरफ से फ्री रहेंगे और दे कैन गिव मैक्सिमम टाइम टू देयर रिसर्च। ओके, यानी मैरिड कपल्स के लिए हम लोग एक साथ यहाँ दे पाएंगे फैसिलिटीज। हाँ जी। हाँ, नाउ वी कम टू सोशल impact, public safety and outreach, COPS COPS and Simhast 2028. How will the Center of Public Safety redefine managed's role in public safety, crowd analytics and disaster management, especially in the context of Simhast 2028? अभी आपने जैसा कि उल्लेख किया, उज्जैन में 28 में सिम्हस्त कुंभ लगेगा। तो उसमें एक तकनीकी संस्थान होने के नाते दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर बेटर अरेंजमेंट एंड बेटर मैनेजमेंट। एक इसमें एक आता है क्राउड मैनेजमेंट, पब्लिक सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के DGP साहब ने, जो कि हमारे ओन एल्मनस हैं, अभी एक फंक्शन में वो थे, उन्होंने अभी कहा भी है कि मैनेट में वो पब्लिक सेफ्टी पे, रोड सेफ्टी पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेंगे। तो हमारी फैकल्टी इस पे जो काम कर रही है वो मिल के मध्य प्रदेश में उनको, पुलिस को बताएंगे कि कहाँ पे ग्रे एरिया है। और दूसरा, क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम AI का यूज करके, ड्रोन टेक्नोलॉजी और AI का यूज करके उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, जो आपने कहा सोसाइटल इम्पैक्ट, और इसमें एयर पॉल्यूशन में, क्योंकि एयर पॉल्यूशन एक बिग कंसर्न है जो कि आप देख रहे होंगे हर जगह है, मध्य प्रदेश में भी है, और ख़ास करके PPM 2.5 के नीचे या उससे वहाँ पे कम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये काम करें। और प्रपोजल शायद हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इन्वायरमेंटल के प्रोफेसर ने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। ये AI का यूज़ करके, ड्रोन का यूज़ करके, और हमारा रोड सेफ्टी और ये एयर पॉल्यूशन का, ये सब चीज़ों पे हम कुछ काम करके हम कोशिश करेंगे कि हम सरकार को सहयोग कर सकें। क्या इसी तरह का इंस्टीट्यूशन एक DMI हमारे भोपाल में आपके साथ है, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उनके साथ भी किसी तरह का आपका कोई कनेक्शन बनता है? अभी नहीं, हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा क्योंकि आप उसी पर वर्कआउट कर रहे हैं। फॉर्मल नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल अपने फैकल्टी से कहेंगे कि उनसे कोलैबोरेट करें, कहीं ना कहीं जुड़े अच्छा काम करें। रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इनिशिएटिव आर प्लान्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट, रूरल आउटरीच एंड कम्युनिटी सेंट्रिक इंजीनियरिंग इन मध्य प्रदेश एंड द रीजन? जैसे हम अभी उन्नत भारत अभियान के माध्यम से 12 गांव में हम जा रहे हैं। उनमें हमारी उन्नत भारत की टीम जाके काम कर रही है। ये मध्य प्रदेश के लोकल पॉपुलेशन को देखते हुए एक मास्टर्स प्रोग्राम शुरू करने का रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का है, जिसमें ट्राइब्स को ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिजाइन किया जाए और यहाँ पे लोकल लोग पढ़ें और उनको हम जॉब मुहैया करा सकें। तीसरा ये है कि जो लोकल रीजनल रिसर्च के माध्यम से जो रीजनल प्रॉब्लम एड्रेस कर सकते हैं, उसको भी कहा गया कि वो एड्रेस करें। जैसे मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि इनके जो भी यहाँ भोपाल से ही रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उनमें चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे वाटर की हो, चाहे हेल्थ की हो, हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। जो आप लगातार बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कई कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे हमारे भोपाल में एक इंटरनेशनल लेवल पर गूंज आई थी जब 1984 में
हमारे भोपाल में MIC गैस लीकेज हुआ, यूनियन कार्बाइड केस। ये इस तरह की घटनाओं को रोके जाने के लिए पैरामीटर्स पर कहीं हमारे यहाँ पर कुछ रिसर्चेज हैं जो इनको संभाल सके इंडस्ट्रीज़ पर? अभी इस पे तो कुछ डायरेक्ट रिसर्च नहीं होगा, लेकिन केमिस्ट्री के लोग और केमिकल इंजीनियरिंग के लोग इस पे कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सीधे उस गैस लीकेज से रिलेटेड होगी ऐसा कोई डायरेक्ट इनकरेक्टेड रूल्स पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। जी। ओके, सस्टेनेबिलिटी एंड कैंपस इकोलॉजी, हाउ विल मैनेज बैलेंस इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, कैंपस एक्सपेंशन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस इस 600+ एकड़ कैंपस? देखिए, मैनिट का कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है, 600+ लश ग्रीन है। तो इसमें ये भी हमारा ये है कि अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करें तो एक तो वहाँ पे है कि पेड़ ना काटा जाए, उनको अवॉइड किया जाए, वहाँ करें। और अगर हम 10 पेड़ ज़रूरत है काटने की तो उसकी जगह 10 गुना ज़्यादा 100 पेड़ लगाएं। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग कई 100 पेड़ लगा चुके हैं और लगा भी रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करते हुए, इसके लिए एक नेचुरल हैबिटेट क्लब भी बना है जिसमें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई नई पक्षियाँ भी हैं। तो हम इस तरह से हम फलों के पेड़ भी लगा रहे हैं कि जो भी जानवर पशु पक्षियाँ हैं उनको भी भोजन मिले। वो हमारे पास वाटर बॉडी भी है, उसको भी कंजर्व कर रहे हैं। तो जो भी डेवलपमेंट है ये सीधे सीधे प्लानिंग डिवीजन को इंस्ट्रक्शन है कि बिना डिस्टर्ब किए हुए मिनिमम डिस्टर्बेंस के साथ करें। और अगर मजबूरी है तो अगर एक पेड़ आप हटाते हैं परमिशन लेके, बिना परमिशन के तो कुछ नहीं कर सकते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लीजिए। अगर एक हटाते हैं तो 10 लगाइए। तो आप अगर कैंपस में घूमेंगे तो देखेंगे काफ़ी कई जगह प्लांटेशन और इस तरह के, और जो भी हमारे एरिया हैं उनको ये था कि उनको इस हिसाब से ब्यूटिफाई कर दें कि लोग उसमें बैठें, घूमें और नेचुरल हैबिटेट को बढ़ावा दें। और वैसे भी हमने, जैसे मध्य प्रदेश के दर्शक इस बात को अच्छे से बखूबी जानते हैं, जब भी आप ऊपर से आप देखते हैं, गूगल मैप्स से देखें, आप देखेंगे 1960 का, 1980 का, 2000 और 2025 आप देखेंगे लश ग्रीन परसेंटेज मैनिट कैंपस पर अब भी पहले से ज़्यादा है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। धन्यवाद। 42% दिखता है। हाँ, अभी भी हमारा, क्योंकि हम पेड़ कटे नहीं है लेकिन लगे ज़्यादा है। अब आते हैं हमारे प्लेसमेंट, इंडस्ट्री लिंकेज एंड करियर रेडीनेस, प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप। व्हाट चेंजेस डू यू फोरसी इन मैनेज प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप स्ट्रेटजी फॉर अपकमिंग बैचेस? चैलेंजेस तो हर बैच के लिए हैं। अभी तक तो हमारा प्लेसमेंट 90% है, लेकिन उसको 100% करना है। और दूसरा, प्लेसमेंट ही एक चैलेंज नहीं है, अच्छा पैकेज दिलाना भी एक चैलेंज है। वो बड़ा चैलेंज हो गया। प्लेसमेंट तो हो जाता है, लेकिन हमारा ये कि मीडियन सैलरी जो 15 लाख के आसपास है उसको 20 लाख 25 लाख कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 चीज़ें हैं जो हम रेगुलर अपनी कंपनी से फीडबैक लेते हैं। हमारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट, आज भी प्लेसमेंट के लिए सुबह हमारी बैठक थी। तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट में जो कंपनी आती है फीडबैक लेते हैं, वो फीडबैक हम डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। तो एक तो बच्चों को सॉफ्ट स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एनालिटिकल कैपेबिलिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और जो निश एरिया है, ऐसे जो आ रहे हैं अपकमिंग एरियाज हैं, उनमें उनको एक्सपोजर के लिए एलुमनाई के माध्यम से स्पेशल लेक्चर या हम इन हाउस स्पेशल लेक्चर कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर डिपार्टमेंट को इस तरह की जो गैप आइडेंटिफाई करके और 5 साल बाद इंडस्ट्री की क्या डिमांड होगी उसको आज सोचते हुए, विजन में लेते हुए अपने स्टूडेंट्स को रेडी करना पड़ेगा। वो हम कर रहे हैं। बहुत नाउ स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, what steps is MANIT taking to strengthen incubation, patents, intellectual property and the overall startup ecosystem on campus? पहले मैं पेटेंट के बारे में जवाब दूं कि हमारे पास IPR सेल है। जो भी PhD स्टूडेंट अपने फैकल्टी मेंटर के या मास्टर्स स्टूडेंट या कोई भी फैकल्टी IPR करता है उसको हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं। हमारा IPR सेल है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ये अटॉर्नी हैं उनको कनेक्ट कराते हैं। हम अपने रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फंड से वो पे करते हैं, जिससे कि कल्चर बढ़े। तो स्टूडेंट्स में है, PhD स्टूडेंट्स को रिसर्च में कहीं इंडिया में कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए हम वो फंडिंग कर रहे हैं।
मास्टर्स स्टूडेंट्स को भी फंडिंग कर रहे हाँ हैं, जी। और अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जाता है तो वो भी फंडिंग कर रहे हैं। और अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट बाहर जाता है विदेश, हाँ जी। तो 50,000 की सीलिंग है, वो भी फंडिंग कर रहे हैं, भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को, हमारे तरफ से इनकरेज कर रहे हैं। हाँ, हमारी तरफ से हमारा इंक्यूबेशन सेंटर स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, एलुमनाई को इनकरेज कर रहा है कि वो आए इंक्यूबेट करें। हाँ जी। उनको हम स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को तो जैसा पहले हमने बताया था कि उनकी आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद 50,000 रुपये पर स्टूडेंट दे भी रहे हैं स्टार्टअप ये इंक्यूबेट करने के लिए। Okay. और उनको कोशिश हमारी है कि एक एलुमनाई जो सक्सेसफुल है, हाँ जी। एलुमनाई सेल के से लिंक करा दें जिससे वो आगे बढ़ सके। तो हमारा कोशिश है कि हम एक ये एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाएं कि हमारे कुछ स्टूडेंट हाँ। कि वो जॉब प्रोवाइडर्स बन जाए। वो इकोसिस्टम में इस तरह का मेजर रोल जी प्ले करें। जी बहुत खूब। लीडरशिप एंड पर्सनल इंसाइट की बात करें, जर्नी, स्ट्रगल एंड टर्निंग पॉइंट्स, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जब इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो इंस्पिरेशन यहीं से उन्हें मिलती है जिसकी हम बात करें। विच अर्ली स्ट्रगल और टर्निंग पॉइंट्स इन योर लाइफ शेप्ड यू इनटू द लीडर यू आर टुडे? मैं किसी एक पॉइंट या उनको नहीं कह सकता हूँ। मेरा सिंपल फिलॉसफी है कि मुझे कुछ काम करना है और अच्छा करना है, तो मैं अपने गुरु की संत शिरोमणि सैयदास बाबा को उनके चरणों में नमन करते हैं कि उन्होंने जो मुझे सीख दी कि लाइफ इज ए चैलेंज, एक्सेप्ट इट एंड सर्व एज साइलेंटली एज यू कैन। दूसरा उन्होंने कहा कि सुख दो दुखों के बीच का मध्यांतर है। सुख है तो दुख होगा ही, तो अगर जीत है तो हार भी होगी, तो हार से विचलित नहीं होना है। और फिलॉसफी जो सीखा माँ बाप से, जो संस्कार मिला, और जो ये कि हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है, मैं छात्रों को भी कहना चाहता हूँ किसी को भी कि आपने कुछ सोचा और नहीं मिल रहा है तो शायद ईश्वर उससे अच्छा कुछ देना चाहता है, इसलिए अभी नहीं दे रहा है। मैं इसके लिए एक जो दिनकर की कविता मुझे बहुत पसंद है, वो मैं उसको करूँगा। कर्म भूमि पर चलो निरंतर, थमना यहाँ निषेध है। जीवन की हर राह कठिन है, संघर्षों का ही गेय है। आशा मत माधो फल की, केवल कर्म तुम्हारा सत्य। परिश्रम से ही खिलते हैं सफलता के मधुर रथ। और दूसरा जो आपने कहा कि परिश्रम ये है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव कर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। क्या तो परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ जी। बाधाएं आती हैं, जैसे आप हमारे कैरियर की बात कर रहे हैं, तो कभी सोचा था कि आईटी में जाएंगे, नहीं कि स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा, लेकिन उसको कमी नहीं माना कि जो मिला वो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा था, उसी में अच्छा करने की कोशिश करो। वहाँ से फिर टीचिंग में आया, गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियरिंग सर्विसेज ले गया, लेकिन टीचिंग में आ गया। फिर अब टीचिंग में ये आया तो फिर यही अच्छा करना है। हाँ, इसी में जो मिला, हाँ, इसमें अब उसको ये कहना कि हमको ये नहीं मिला, कि हमेशा ये फिलॉसफी रहेगी कि हमारे गिलास का पानी उसके गिलास के पानी से कम है, तो कभी हम कमी ही देखते रहेंगे। तो ये था जो मिला है वो ईश्वर ने मुझे ज़्यादा ही दिया है। क्या तो उसको करते हुए आगे बढ़ते जाए। और मुझे लगा कि मैं सफलता मिलती गई, और जब कहीं नहीं भी मिली उसमें भी मैंने सफलता ढूंढ ली कि हो सकता मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए ईश्वर ने नहीं दिया। बहुत शानदार। तो ये हमेशा ये होना चाहिए कि हर किसी के लिए कि सफलता असफलता दोनों एक अंग है, सुख और दुख है, जीवन है तो मृत्यु होगा। बिल्कुल। तो उसको अंगीकार करना पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर असफल आज हैं तो कल सफल होंगे, कल नहीं अगले दिन होंगे। लेकिन अगर सफल नहीं हुए तो बस ये आत्मचिंतन करना है कि हमारे प्रयास में कमी है। गलती कहाँ हम करते हैं? हम सिस्टम को दोष देते हैं, परिस्थिति को दोष देते हैं, दूसरे को दोष देते हैं। कोई दोष का भागी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे अंदर है, उस कमी को पहचान करके उसको इम्प्रूव करें, आगे निश्चित सफलता मिलेगी। क्या बात है। जैसे डॉक्टर कमलेश शुक्ल कह रहे हैं, परिश्रम और प्रयास की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जो इन्होंने नकार दिया उसको मैं बताना चाहूँगा कि शिकायतों की बात चलेगी तो रात गुजर जाएगी,
शिकायतों की बात चलेगी तो रात गुजर जाएगी, ना नींद तुमको आएगी ना चैन हमको आएगा। इसलिए इससे दूर जाएं और हम अपने प्रयासों पर और हमारे परिश्रम पे आ जाएं, जो हमें सफलता का मार्ग देगा। और आज जिस व्यक्तित्व के साथ, जिन्हें हम विभूति मान सकते हैं, उनके साथ बैठे हैं, ये डॉक्टर कर्णेश शुक्ल बनते हैं जब व्यक्ति इस राह पर, जो दिनकर जी की कविता कहती है, हम चल पाते हैं। मैं अंत में रामचरितमानस की कविता से, बालकांड की चौपाई से, हाँ जी, क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी जब आप परिश्रम करेंगे। हाँ, जय पर कृपा करें जनु जानी, कभी उर अजिर नचावही बानी। कि जब भगवान प्रभु श्री राम कृपा करते हैं तो माँ सरस्वती भी आपके आंगन में आ जाती है। क्या बात है। मोर सुधारे सो सब भांति, जस कृपा नहीं कृपा आगाती। वो हमारा सुधार करते हैं जब कृपा रहती है, और ऐसी कृपा होती है कि कृपा भी छोटी पड़ जाती है। कृपा भी छोटी हो तो जाती है। अगर आप अपने पे विश्वास रखें, अपने माँ बाप पे विश्वास रखें, हाँ जी, अपने संस्कार पे विश्वास रखें, हाँ। और ईश्वर पे विश्वास रखें। जिस किसी को भी मानते हैं सब अच्छा होगा। कभी मैं तो सबसे ही कहता हूँ कि खराब होना ही नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। बहुत खूब। कि खराब कुछ होता है नहीं। जैसे मैं सबसे कहता हूँ कि मैंने जो सीखा कि भोजन या तो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है, खराब होता ही नहीं। क्योंकि जिसको भूख लगी उससे पूछो भोजन क्या होता है। कितना खूबसूरत बात है आपने। भोजन या तो अच्छा होता है वो, या बहुत अच्छा होता ये है। नए बच्चों ऐसे के ही लेसन कृपा भी- अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। हाँ, इनके तो बीच में खराब है। जो सबका माँ बाप है, परम हाँ। पिता परमेश्वर है। हाँ। जैसे हम अपने माँ बाप होते हुए अपने बच्चों का अहित नहीं सोच सकते हैं, तो हम जिसके संतान हैं वो हमारा अहित कैसे सोचेगा। क्या? लेकिन जो हमने कर्म किए हैं, हाँ। कुछ हमको ज्ञात हैं, कुछ नहीं ज्ञात। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको भोगना तो हमको पड़ेगा। वो प्रारब्ध और हमारा है। हाँ, तो वो प्रारब्ध हमारा है, और हाँ। ईश्वर में विश्वास रखेंगे तो वो भोग भी कट जाएगा। कट जाएगा। यानी हम बात करें प्रिंसिपल्स बिहाइंड द चेयर, व्हाट कोर वैल्यूज गाइड योर डिसीजंस एज द डायरेक्टर मैनेट? मेरा माई डिसीजन इज ऑलवेज टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। इट शुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट। कि इन अप्रोच यू हैव टू बी 100% ऑनेस्ट, नॉट 99.99. There is no iota of any dishonesty in your actions. No. I always say that my actions, all the actions and decisions are for the betterment of the system. My philosophy is country first, my institution first, then comes my family, then myself. Wonderful. So even I keep the Manit institution ahead of my family. I keep country ahead of it. Because country is there, then Manit is there. Yeah. Manit is there, then my family is surviving on With the us. salary which I am getting. Yeah. So I am indebted to Manit, I am indebted to my country, because they are existing, they are doing well, then that's what I am doing well. I'm doing that. My decisions some of decisions may be wrong, but always I say that my intentions will never be wrong. So my That should philosophy be. is there Yeah. कि decisions should be taken in right spirit. And दूसरा जो आपने कहा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि when I sit on the chair, I am the director, everyone is equal to me. Okay. Whether you praise me or whether you abuse me, none of my Okay. decisions will get I think swayed away by your actions. Wonderful. They are purely on the merit. But as an individual, I will love to have a cup of tea with Dhirenji. I will not love to have a cup of tea with somebody else. That's my personal. If our personal frequency matches, then we'll enjoy as a friend together. Yeah, definitely. But having said this, that I am having a cup of tea with you, I am going to give you some due disadvantage. This is not going to happen. Wonderful. So I have to keep the personal and professional life distinct. Distinct. And it should be transparent. 100% transparent. आपको आप देखें, आप जब भी कभी मेरे कमरे आएंगे, मेरा कमरा कभी फाटक बंद नहीं होता. It's open. Anyone can come anytime. Yeah, I know. Yeah. Anyone can come. उसको परमिशन, वो बस हम कोई मीटिंग कर रहे हैं तो रुक तो जाओ. उसको रुक जाओ, आ जाते हैं और मैं सबसे मिलता हूँ. हाँ. जो भी उसकी समस्या है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ. उसने मुझे इस लायक चुना है कि मैं किसी की समस्या का समाधान कर सकता हूँ. प्रयास में. तो आई मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड. और Correct. कोई भी व्यक्ति आता है, अगर वो समस्या के साथ आता है तो मेरी जिम्मेदारी है. अगर मैं नहीं सुनता हूँ, नहीं करता हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से दूर. कम से हो जाएगा. हाँ. हम फाइनली उस सेगमेंट पर हैं जहाँ हमारे यूथ आपसे सुनना चाहते हैं आपका संदेश. मैसेज टू इंडियाज यूथ. व्हाट इज वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव एवरी एस्पायरिंग इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट इन इंडिया?
मैं एक सिंपल मैसेज देना चाहूँगा कि स्वयं पे विश्वास रखो। हाँ जी। अपने वैल्यूज पे विश्वास रखो। आप मैं सबसे कहता हूँ कि आप अपने माँ बाप का आदर करना सीखो, अपने परिवार का आदर करना सीखो, अपने बड़ों का आदर करना सीखो, अनुशासन में रहो और अपना 100% अपने जो भी पढ़ाई में हो, पढ़ाई कर रहे हो तो 100% लगाओ, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमारा 100% डिस्चार्ज चाहिए बस। 100% ये है कि मैं सबसे ये कहता हूँ, नॉट ओनली स्टूडेंट्स और फैकल्टी, कि यू गिव योर बेस्ट टू द इंस्टीट्यूशन, टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वट एवर इज द बेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, टेक इट। हर संस्था में, हर व्यक्ति में अच्छा बुरा होता है। कुरुक्षेत्र हमारे अंदर ही होता है। हम ही पांडव हैं, हम ही कौरव हैं, तो हमारे पांडवी गुण को आप ग्रहण करें, कौरवी गुण को छोड़ दें। संस्थान में अच्छाई भी होगी, खराबी भी होगी। हाँ जी। तो जो अच्छाई है उसको ग्रहण करें, तो आपका निश्चित कल्याण। जैसा कि डॉक्टर शुक्ल, हमारे प्रोफेसर करुणेश शुक्ल आपको एड्रेस करते हुए बता रहे हैं कि आपके पास 3 ही मंत्र हैं, प्रयास और 100% प्रयास, यानी डिस्चार्ज जो आपका है वो 100% आना चाहिए। अगर आप ये रखते हैं और आपका मत जो है वो सच्चा है तो रिजल्ट्स आपके हाथ में होंगे और देश को आप ऊंचा उठाएंगे। आइए हम सब उस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे जो हमारे डॉक्टर करुणेश आपके साथ साझा कर रहे हैं। थैंक यू प्रोफेसर शुक्ल फॉर शेयरिंग योर विजन, योर रोड मैप एंड योर कमिटमेंट फॉर excellence to excellence and social responsibility. As Merit marches forward under your guidance, we hope to see responsible citizen, innovators and nation builders emerging from this campus. This is ST Virendra signing off. Stay curious, stay committed. Keep watching Words with Virendra. Thank you ITDC India. Thank you Madhya Pradesh. वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी। आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। Welcome to ITDC stories. To every headline, we lead with clarity. ITDC news, reporting it right. Har gali, har gaon, har shahar ki fight. Stories that inspire, stories that bind. ITDC news, the voice of Garam Garam Garam. This. आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। Welcome to ITDC stories. To every headline, we lead with clarity. ITDC news, reporting it right. Har gali, har gaon, har shahar ki fight. Stories that inspire, stories that bind. ITDC news, the voice of Garam Garam Garam. This.